ایکس ایم ایل اے جناب اسلم خان صاحب، ہمارے باہر سے آئے مہمان جناب مختار مرزا صاحب، شمیم مغل صاحب، حق صاحب بیٹھے ہیں ادھر، ہمارے بلاک صدر تصدق خان صاحب، بلاک صدر فاروق عالم صاحب، ہمارے ملک صاحب تشریف لائے ہیں، سرپنچ صاحب ہمارے اپر دیریو بیٹھے ہیں، اعظم صاحب، اکرم خان صاحب، سابقہ سرپنچ طالب حسین خان صاحب بیٹھے ہیں، یا ایوب خان صاحب ہمارے سرپنچ صاحب بیٹھے ہیں، شمشیر خان سرپنچ صاحب بیٹھے ہیں یہاں، دیگر بہت سارے حضرات، اگر میں سب کا نام لوں گا، بی جی سے ہمارے ماسٹر جی آئے ہیں، کوکوڑا کے سرپنچ صاحب ابھی یہاں تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ریاض صاحب، دیگر تمام جو معززین یہاں بیٹھے ہیں، میں سب سے پہلے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں بہت شارٹ نوٹس میں اتنی کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں۔ یہ کوئی کسی میری ذات کا معاملہ نہیں، اعجاز جان صاحب کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ یہاں کے جموں کشمیر کے ہر فرد کا معاملہ ہے۔ بہت عرصہ سے میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے بیٹھ کر بات کروں۔ میں نے ایک شارٹ نوٹس پر میں نے سوچا تھا کہ صرف جو سرپنچ حضرات ہیں 5 7 یا 10 میں ان کو بلا کے بات کروں گا۔ یہ آپ لوگوں کا خلوص اور آپ لوگوں کا پیار ہے کہ آپ اتنی کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں۔ جتنے بھی مقررین مجھ سے پہلے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، سب نے یہ آپ کو بتایا، مزید بتانے کے لائق کچھ نہیں ہے۔ لب لباب یہی ہے کہ ہم ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے، ایسا دور تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ سنتے آئے ہیں، جس طرح اسلم صاحب نے بھی آپ کو بتایا، 1846 میں ہم سب کو خریدا گیا تھا، یعنی ہمارے آبا و اجداد جو تھے اس وقت 75 لاکھ میں، جس کو امرتسر معاہدہ کہا جاتا ہے، امرتسر کی ٹریٹی کیا ہوتی ہے؟ لین دین معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت یہاں کے درخت، یہاں کے انسان، یہاں کے جانور، یہاں کے پشو، یہاں کی زمین 75 لاکھ میں انسانوں سمیت خرید لی گئی تھی، مہاراجا نے خریدا۔ وہ دور بھی دیکھا ہوگا لوگوں نے، ہم نے اس دور کو پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا نہیں۔ لیکن جس ذہنی کوفت سے ہم گزرے پچھلے 3 سال، مجھے نہیں لگتا کہ وہ حالات اس سے بدتر ہو سکتے۔ میں آپ لوگوں سے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پہلے جب میں نے جس کو بھی میں نے فون کر کے اطلاع دینے کی کوشش کی، اس نے ایک ہی بات کہی، جناب شادیاں ہیں۔ میرے خیال میں 4 5 تو اسی ارد گرد میں شادیاں ہیں اس وقت، بہت سارے لوگوں نے شادیوں میں جانا ہوگا۔ شاید مولانا روم کا واقعہ ہے، مولانا روم ایک لکھتے ہیں، ایک تلمیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ جو باز ہوتا ہے نا، باز، جس کو علامہ اقبال نے ایک خیالی پرندے کا نام دیا ہے شاہین۔ شاہین کسی پرندہ نہیں ہے، ایک خیالی معدوم پرندہ ہے جو شاعر کے دماغ میں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی تشبیہ اس باز سے دی ہے کہ باز بہت اونچا اڑتا ہے، اس کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کوا اور شاہین جو تھا، یہ جو باز تھا، یہ بہت اونچائی پہ اڑ رہا تھا۔ تو باز نے کوے کو کہا کہ دیکھ میں کتنی اونچائی پہ ہوں، میری نظر کا کمال دیکھ، وہ زمین پر دانا پڑا ہے، میں یہاں سے نیچے جاؤں گا
हजार हा मील ऊपर हूं मैं, लेकिन मुझे मेरी नजर देख के मैंने वो दाना देख लिया है और मैं अभी जाऊंगा उस दाने को जाके खाऊंगा। वो बाज आता है, जो ही वो दाना उठाने की कोशिश करता है तो वो दाना जो है वो शिकारी ने रखा होता है, साथ में जाल लगा होता है, वो जाल में फंस जाता है। जब कौवा नीचे आया, उसने कहा भाई मेरा साथी गया था वापस नहीं आया। तो कौवे ने कहा, हो तेरी इस नजर का क्या फायदा कि तूने दाना तो देखा मगर वो जाल तुझे नजर नहीं आया। आज दाना तो हमने देख रहे, हम दाने पे तो जा रहे, मगर वो जो उसके पीछे जाल छुपा है हम उसको नहीं देख रहे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश यही है कि दाने के साथ साथ उस जाल पे भी नजर रखो जो उस दाने के पीछे शिकारी ने रखा हुआ है आपके लिए, आपको फंसाने के लिए। आपको तकसीम किया जाएगा। बहुत हरबे इख्तियार कर चुके हैं लेकिन सब जगह फेल हुए। हमारे बीच यहां एजाज जान साहब हैं, हालात हाजरा से वो मुझसे ज्यादा वाकिफ है। इन्होंने कोई हरबा नहीं छोड़ा और आज की तारीख में भी सबसे बड़ी कोई दुश्मन पार्टी अगर इनके लिए है, सबसे बड़ा कांटा जो इनके दिल में है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसको ये तोड़ नहीं पाए। और ये जो इलेक्शन को डिले कर रहे हैं ना, जमहूरियत का तो बड़ा ये डंडोरा पीटते हैं। झूठ की कोई हद नहीं छोड़ी इन्होंने। मैं पिछले दिनों ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की एक तकरीर सुन रहा था। तकरीर सुनते सुनते मुझे खुद पर शर्म आना शुरू। हर चीज की एक हद होती है। तुम जब पब्लिक में जाकर पब्लिक के सामने तकरीर करते हो, सारे अंधे नहीं हैं। कुछ लोग तो जरूर जानते होंगे। कहा जनाब 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को कोई रिजर्वेशन नहीं थी पंचायतों में। अरे भाई वो तो 1992 में जिस दिन से रिजर्वेशन आई है, पंचायतें तो तब से रिजर्व थी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए। कौन सी चीज नहीं दी आपने? लेकिन गुजरात के अंदर लाखों की तादाद में लोगों को जलसे में यह कहा गया कि वहां एंटी करप्शन लॉ नहीं था, खुली लूट थी। अरे भाई हमारा जम्मू कश्मीर का जो एंटी करप्शन लॉ था, जो इंसदाद दहशत क्या नाम है, रिश्वतस्तानी का जो कानून था, वो आज का जो कानून जो आज आपने लागू किया उससे बहुत सख्त था। उसमें अटैचमेंट प्रॉपर्टी, जिसकी नाजायज प्रॉपर्टी होती थी, वो जब्त हो जाती थी। हमारे आज के कानून में वो नहीं है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में झूठ बोला गया। ये मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, इस पर वक्त नहीं जाया करना चाहता। हमारे लिए यह कहा गया कि ये सब चोर हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पीडीपी, ये कांग्रेस, ये जितनी भी हुकूमतें यहां रही हैं, सबने चोरियां की, उन्होंने कोई तरक्की नहीं की। हमने आकर 2019 के बाद तरक्की की। अरे भाई बाकी जगह एजाज जान साहब जाते हैं, मैं तो कहीं जाता नहीं, मुझे कोर्ट से फुर्सत नहीं मिलती। अगर कहीं तरक्की हुई है भाई, अगर कहीं 2019 के बाद, तो हमारे मंजा कोर्ट में भी करवा दो, यहां तो कुछ नहीं हुआ। यहां भी करवा दो अगर और जगह हुई है कहीं तो, मगर यहां तो मैंने कोई तरक्की नहीं देखी। अब ये हालात ये हैं कि मजदूर को मजदूरी नहीं, पंचायत को अपना काम कराने का हक नहीं। मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेने के बावजूद भी आज तक यहां के रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन की तानाशाही देखो। हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, पंचायत को अपना हिस्सा नहीं दिया जो कानून कहता है। यहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं हमने रिश्वतस्तानी का खात्मा कर दिया। मैंने ये दौर, इस किस्म की रिश्वत ना तो कभी पढ़ी ना सुनी जो इस वक्त चल रही है। कोई ऐसा ऑफिस नहीं, मैं किसी एक ऑफिस को नहीं कहूंगा, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जम्मू कश्मीर में या किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जहां बगैर पैसे के आपको कोई काम हो। फिर हम कहते हैं हमने रिश्वत खत्म कर दी, हमने तामीर और तरक्की के दरिया बहा दिए। बेरोजगारी आसमान छू रही है।
मजदूर को मजदूरी तक नहीं मिलती, नरेगा का पैसा नहीं दे पाए आप तामीर और तरक्की की बातें करते हो। आप कहते हो कि हमने पूरे हिंदुस्तान के साथ जम किया। अरे भाई, आपने तोड़ा जम्मू कश्मीर को, आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पहले तो 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ा, डिसइंटीग्रेट किया, फिर आपने तकसीम की, लोगों की, जम्मू को अलग किया, कश्मीर वालों को अलग किया। जो शेर कश्मीर ने तीनों खित्तों को जोड़ा था, उसके बाद उनके सपूत फारूक अब्दुल्ला साहब ने तीनों खित्तों को साथ चलाया इतने साल। आपने उनके दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि उस दीवार को गिराने के लिए हमें पता नहीं दिहाइयां लगेंगी। ये कौन सी इंटीग्रेशन है, ये कौन सी मजबूती है, हमें खुद समझ में नहीं आई। हमने हुक्मरानों के बारे में पढ़ा है, सुना है कि हुक्मरान की कोशिश ये होती है कि मेरे लोग आपस में इत्फाक में रहें, जुड़ के रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें 19,500 ज़बानें बोली जाती हैं, 19,500 ज़बानें, जिसमें 6,500 जातें हैं, और जिसमें दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जो आपको यहां नहीं मिलेगा। ये कौन हुक्मरान ये चाहेगा कि ये मजहब जो हैं ये आपस में लड़ते रहें, लोग लड़ते रहें। यहां खाली मजहबों की जंग नहीं है, यहां जबानों की लिसानी जंग है। आप साउथ में चले जाओ, उनको कहो आप हिंदी बोलो, वो अंग्रेजी बोलेंगे, वो तमिल बोलेंगे, वो हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी से नफरत करते हैं। आप नॉर्थ में आ जाओ, सेंट्रल जो इंडिया है उसमें आ जाओ, वहां हिंदी बोलते हैं, वहां कोई दूसरी जुबान बोलो उससे नफरत करते हैं। अब केरला में चले जाओ, केरलाइट जो है वो हिंदी नहीं बोलेगा। तो इन तमाम जबानों को, तमाम मजाहिब को, तमाम रंग नस्ल को इकट्ठा जोड़ कर रखना, असल बात जो हुक्मरान की है वो यही है, और यही यहां के आइन की रिक्वायरमेंट है, आइन यही चाहता है। लेकिन एक अजीब किस्म की सूरत हाल यहां पैदा की गई है कि पहले तो यहां हिंदू और मुसलमान के दरमियान आपस में खला पैदा की गई, फरोई मामलात पे जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। फिर गुज्जर और पहाड़ी की, फिर कश्मीरी नॉन कश्मीरी की, कहीं गांव और शहर की, फिर बकरवाल और गुजरों की। ये तमाम हथकंडे जो आप पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपको तकसीम करने की एक साजिश है। आप इस साजिश को समझो। ये जाल वही है जो बाज ने ऊपर नहीं देखा, दाना देखकर लपक गया। हम कहीं दाना देखकर लपक ना जाएं और गलती से उस जाल में ना फंस जाएं। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है। अजान हो रही है, मैं कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप सब ने मिलकर मेहनत करनी है और इस पार्टी को मजबूत करना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।